Okay, I'll ask the question. Do you approve this message? I do. क्या मैसेज है? मैसेज क्या है? मुझे क्या पता? She actually doesn't even know what the message is. I'm gonna say some stupid shit in the rest of the video and she's gonna get in trouble. But anyway. Are you fucking stupid? The thumbnail was sarcastic clickbait. Relationship advice from me. हरकतें नहीं देखी शायद तुमने मेरी अभी. Everyone online is fucking stupid, including me. But when it comes to judging human nature, मैं थोड़ा कम चूत. तुम थोड़े ज़्यादा ही हो. Officers fail at it. Engineers fail at it. Parents भाई no offense for you, but सबसे ज़्यादा you suck at it. उनकी तो ईगो इतनी बड़ी होती है कि they're willing to throw their kids' entire life into trash. अपनी गलती नहीं माननी, पता झट कुछ नहीं है. And according to them, conducting a basic conversation जहाँ पे maybe वो सवाल पूछेंगे और मैं जवाब दूंगा, maybe मैं सवाल पूछूंगा और वो जवाब देंगे, उसको बोलते हैं मुंह चलाना, तू तड़ाक करना, उल्टा जवाब देना. That's the entire idea of conversation. You never mind. Are you single? And if the answer is yes, have you ever considered killing your internet is stupid and corrosive. मतलब entirety of it. सबके सब perhaps online experts बैठे हैं हर चीज में. There is a pre-relationship advice, post-relationship advice, bench ideas to make a relationship interesting, ideas to unfuck an already fucked relationship, वो भी हैं. सब कुछ present है internet पे for free in a shit ton of volume. But still, the lapse of relationships and even marriages is at an all-time high these days. 10 साल पुरानी relationships भी टूटते हुए दिख रही हैं मेरे को, ये बोल के कि hey, maybe I was wrong about you. I didn't understand and know you enough. Bitch, it took you 10 years to understand that? Trust तो मतलब है ही नहीं. There is practically no emotional attachment as well in the relationships. Small inconvenience, break up. Small fights, break up. Call जल्दी क्यों नहीं उठा? Break up. Call जल्दी क्यों उठाया? Suspicious. Break up. Fuck you. Everyone is fucking retarded at this point. Let's break it all down a little bit. Sugar तो खाई होगी सबने, मतलब बिस्किट्स की फॉर्म में, चॉकलेट की फॉर्म में, मतलब सबने प्रैक्टिकली कंज्यूम करी ही होगी. Until and unless you hate it and you are fucking stupid and you are weird for that. मैं उनको जज नहीं कर रहा, बट शुगर सबने खाई होगी and it's sweet. उसकी एक प्रॉपर्टी है स्वीटनेस. बट फिर कुछ लोग बोलते हैं कि स्वीट तो ह्यूमन का नेचर भी होता है. सो मेरा क्वेश्चन ये है कि इज स्वीटनेस अ फीलिंग और डिस्क्रिप्शन ऑफ टेस्ट? थोड़ा सोचते हैं. देखो शुगर क्या करती है, इट स्पीड्स अप द प्रोडक्शन एंड डिलीवरी ऑफ डोपामीन इन योर ब्रेन. इसीलिए डॉक्टर ल्यूपिन ऑफर्ड अ चॉकलेट टू हैरी व्हेन अ डिमेंटोर ट्राइड टू सक हिज सोल आउट. व्हेन इज ही गोना सक मी आउट? क्योंकि डिमेंटोर स्टेज 1 में सक ऑल द हैप्पी मेमोरीज आउट ऑफ योर बॉडी एंड लीव यू सैड. इससे कि यू लूज द विल टू लिव एंड फाइनली दे एक्चुअली किल यू बाय सकिंग योर सोल out and your body don't even resist because it's already sad and depressed from stage 1. And इसी वजह से counter to Dementors is a Patronus charm. And guess what generates a Patronus charm? Your happiest memory. That's the idea. So that's the entire idea of dopamine, sugar, whatever. So इसी conclusion को लेके चलते हैं कि sweetness does not describe taste. It describes a feeling of happiness, some sort. Now if you're into eating sugar, तो तुम्हें ये भी पता होगा कि भाई एक दिन चीनी खा के you cannot eliminate its craving for the rest of your life. And that is why I conclude कि feelings don't last. इसीलिए लोगों को डायबिटीज होती है एंड पीपल बिकम ड्रग एडिक्ट्स एज वेल, क्योंकि ड्रग्स आर नथिंग बट शुगर ऑन स्टेरॉइड्स. एंड जीवन में भाई तुम कोई भी फील्ड, कोई भी वर्क या फिर कोई भी एंडेवर जज कर लो, एवरीथिंग इज टू चेज डोपामीन एट द वेरी एंड ऑफ इट. सबको ज्यादा चाहिए इसलिए दे ट्राई टू अर्न मोर, सबको ज्यादा पैसा चाहिए एंड दे ट्राई टू फाइंड न्यू वेज टू गेट डोपामीन. यही है बस. क्योंकि दोस्तों द ओनली थिंग कांस्टेंट अबाउट लाइफ इज सफरिंग नॉट हैप्पीनेस. ठीक, अब इतनी बकचोदी करने का सारा सिर्फ एक ही था. People are willing to even kill themselves to make the dopamine last or the feeling of happiness or bliss last. Just one more day and they lose their entire life chasing it. अब relationships पे वापस आते हैं. क्यों हो रहे हैं भाई आजकल इतने ज्यादा early and frequent breakups? क्योंकि every single one of y'all motherfuckers is a dopamine junkie. That's it. Day 1 when someone tells you that they love you, you get a massive hit of dopamine and other shit as well. Day 10, maybe day 20, day 30 तक भी ये सब रह सकता है, but after a lot of time, I love you don't do shit to you. I mean, it doesn't get your dick hard or your pussy wet. That's the conclusion. अब क्या करें तो? Touch is the next thing. Physical touch. Holding hands, cuddling, kissing. And this lasts a very long time. मतलब 6-7 months or this is very great actually. मेरे को पता नहीं था इतना last करता है, but it actually does from research. But that only is true if you're doing that in moderation as well. The extreme forms of physical touch once every other week or maybe after 3 to 4 weeks. मतलब when you really need it. You starve your body, that's why you enjoy it more. ठीक है? But again, after a finite amount of time, even this won't be enough. Then what's next? Simple. Sex. Now, a fun thing about sex. मेरी माँ को सुनाई देगी ये बात.
कमरे में, मतलब मेरे को गाली पड़ेगी कल सुबह, बट ठीक है। लोग थकते ही नहीं है फ्रॉम हैविंग सेक्स। एंड कुछ तो रिलीजन भी ऐसे हैं जहां पे एंटायर आइडिया ऑफ हेवन इज टू हैव सेक्स विद मल्टीपल वुमेन। आई मीन 72 टू बी प्रिसाइज, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, मेरे को ढंग से याद नहीं है। बट एक बड़ी प्रॉब्लम है सेक्स के साथ, आवर मॉर्टल बॉडी डजंट अलाउ अस टू हैव सेक्स इंडेफिनिटली। मैटर ऑफ फैक्ट, आवर मॉर्टल बॉडी डजंट अलाउ अस टू हैव एनीथिंग इंडेफिनिटली। ज्यादा पानी पी के देखो, तुम्हारी बॉडी मूत मूत के मर जाएगी, ये ट्रू है। सारे इलेक्ट्रोलाइट्स ड्रेन हो जाएंगे, ट्राई करके देखो, मतलब मत करो। आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू कमिट सुसाइड, मैं कंडोन नहीं कर रहा। हर बॉडी गेट्स फिजिकली टायर्ड ऑफ सेक्स, यू लूज टाइम, यू लूज न्यूट्रिशन, हेल्थ, वेल्थ, एंड इफ यू आर नॉट कॉशियस, इवन तुम्हारी जान भी जा सकती है हैविंग टू मच ऑफ इट और विद द रॉन्ग पर्सन। डजंट इट साउंड लाइक शुगर? एंड यहाँ पे आता है डिफरेंशिएशन लोगों में एंड एक्चुअल ह्यूमंस में। एक बंदे ने शुगर खा के डिसाइड किया कि भाई शुगर तो घनी मैं नहीं खा रहा, ठीक है, I'll eat it in moderation or I won't eat it at all. सेकंड बंदा मैं हूं, मैं खाता ही नहीं शुगर, and that is why my face is very chiseled, ठीक है। I'm not gooning, edging or looks maxing. I don't even know how to do these things. Trust me, ठीक है। मेरे चीक्स में कोई लिम्फेटिक फ्लूइड स्टोर होता ही नहीं, एक्यूमुलेट होता ही नहीं, मेरा मुंह सूजता नहीं, that's why I have a defined face. तो ये राज है, ठीक है, now you know. But sex, however, is a type of sugar that requires mutual agreement of two people to set up moderation parameters around it. मैं समझ गया कि भाई too much sex or too much slavery to dopamine by physical means is destroying my life. मैं तो moderation में करूंगा, but मेरा पार्टनर ही समझा, उसने कर लिया तो मेरे से ब्रेकअप। मैं क्या करूं भाई? तुम मानो ना मानो, लोगों का पूरा आइडिया ऑफ रिलेशनशिप जो होता है ना आजकल, वो होता है डोपामीन फार्मिंग। एक्साइटमेंट बनी रहनी चाहिए दोस्तों, बाय एनी मींस पॉसिबल। भाड़ में जाए फिजिकल, इमोशनल और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मेरे को चाहिए सेक्स अनहेल्दी अमाउंट्स में, एट अनहेल्दी टाइमलाइन, एट अनहेल्दी पेस, अग्रेसिव वन, ठीक है। ये मैं इतना प्रिसाइजली की जस्टिफाई कर रहा हूँ, मतलब जो भी है सेक्स चाहिए, ठीक है, वरना मैं तुम्हें छोड़ दूंगा या दूंगी और नया पार्टनर ढूंढ लूंगा, बिकॉज इट्स easy these days. Dating apps can easily get you one night stands with a simple subscription. Social media पे partners ढूंढना is very easy. I mean, pay to win भी available है streets पे if you are willing to stoop so low. But भाई लोगों ने ना आइडिया डाल लिया अपने दिमाग में कि my body count is my crown, जितना बड़ा उतना better, and master emotions in a relationship, physical dominance is the prime aspect and priority of it. But भाई जो smart लोग हैं या फिर normal लोग हैं, भाई normal लोग हैं, उन्हें पता है कि meaning of life is stability and settlement. एक stable, settled, happy, simple life. ये होता है कि भाई मेरे को prime अपने retirement के टाइम पे ये चाहिए, ठीक है, normal लोगों के लिए. Excitement never lasts. Okay, it's the love, loyalty and mutual respect that last after emotional attachment. भाई तुम मानो ना मानो, I come from a family where still घर की छत फट जाए, बहन इतनी लड़ाई होती है कभी कभी between my mom and dad, and still never have I ever heard my mom telling me कि you should hop into the fight to defend her. और मेरे पापा भी कभी नहीं कहते कि भाई तू आ और मेरे को defend कर, because it's their matter. Every time there is a fight in my house, my mom always reminds me of how hard my dad's life is and they should never make us lose respect for him. ये होता है. Fighting isn't a reason to separate at all. ठीक है, it's your choice to not fix it. It's your choice to not fix yourself so that you don't fight for the same reason tomorrow. वो होता है ब्रेकअप का रीजन. ये सीखो थोड़ा. अब मैं फिर वही वाली बात बोल लूंगा और फिर मेरे को लोग बोलेंगे sexist and incel. But सुनो, why is it so कि जब भी मैं डेटा देखता हूँ ऑनलाइन, it's almost always an educated pseudo feminist that think कि आदमी की बराबरी करने का मतलब होता है उसकी हर एक गंदी आदत को रेप्लिकेट करना at 10 times potential. ये according to them feminism है. Smoking, drinking, fucking hella dudes and fucking hella bitches as well. I support lesbians 100%. You go girls. And you call this queen behavior? तुम्हें पता है in ancient times people were not allowed or deemed worthy of looking at a queen's face. That's why उनके सामने पर्दा होता था या फिर घूंघट होता था. उनको restrict नहीं कर रहे थे. They were deeming people unworthy of looking at her face. या फिर जो भी सभा में बैठे हैं, इवन दूसरे देश के राजा भी, ये आइडिया था घूंघट का, ठीक है, एटलीस्ट जो मैंने पढ़ा है फ्रॉम दैट. मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरे को करेक्ट कर देना. तुम किसी भी आदमी से पूछो भाई, किसी भी आदमी से कि भाई गांठ फटी पड़ी है, हाँ भाई. बुरी आदत छोड़नी है, हाँ भाई छुड़वा दे. उसको पता है कैसे छोड़नी है, बट उसके बस की नहीं है. इज आस्किंग फॉर हेल्प. कोई डूड ऐसा नहीं है जो बहन प्राउड है कि मैं तो भाई दारू पीता हूँ. सबकी गांठ फटी पड़ी है भाई. एवरीवन इज ड्रिंकिंग बिकॉज ऑफ स्ट्रेस. एवरीवन इज स्मोकिंग बिकॉज ऑफ स्ट्रेस. एवरीवन इज इनटू ड्रग्स बिकॉज ऑफ स्ट्रेस. वो एंजॉय नहीं कर रहे हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं. दे आर ट्राइंग टू सर्वाइव एंड दे वांट टू लीव इट if they can. And it's so insane कि feminism or toxic feminism has came so far कि basic acts of affection towards one's own family are considered slavery. मेरे को नहीं पता भाई कैसे म्यूटेशन आई, बट आ चुकी है भाई. तुम मैं सोचो कि कितना बड़ा प्रोपेगेंडा रहा होगा कि ऑलमोस्ट एवरी वुमन इन दिस वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम द सेम एग्जैक्ट शिट, ईगो मैनेजमेंट इश्यूज, ठीक है. और सबको इसका सॉल्यूशन भी पता है, बट नो वन वांट टू सॉल्व इट क्योंकि वी आर
too deep down the rabbit hole and it'll hurt even more to go back. एक वीडियो थी from a certain podcast जहाँ पे भुवन बाम भाई ने बताया कि उनकी रिलेशनशिप मतलब उनकी बंदी के साथ 14 साल से ज्यादा से कैसे टिकी हुई है एंड उन्होंने ये बताया कि भाई हम दोनों की रिलेशनशिप इसलिए टिकी हुई है क्योंकि हम दोनों में ईगो ही नहीं है, हम दोनों कभी ईगो की वजह से लड़ाई नहीं करते, हम कभी सुपीरियर बन के ही नहीं दिखाते, ये सिंपल सी चीज थी एंड इट वाज सच अ ग्रेट कोट फ्रॉम हिम एंड मैं तुम्हें उसके मुंह से ये सुना देता बट इस बंदे ने इतना लाउड म्यूजिक लगाया हुआ है ना कि भाई कुछ सुनाई नहीं दे रहा, ऊपर से कॉपीराइट आ जाएगा। एंड भाई व्हाट डू यू मीन कि ऑनलाइन पे एक और ट्रेंड प्रेवलेंट है जहां पे गर्ल्स आर मेकिंग दिस नॉर्मल कि इफ यू लव समवन टू मच दे स्टार्ट लूजिंग इंटरेस्ट इन यू। ये सच है और ये नॉर्मल हो रहा है, मतलब सच तो नहीं है, इट्स अनदर ऑनलाइन पर्सन टेक नो शिट की उनकी रिलेशनशिप नहीं टिक रही है क्योंकि वो ज्यादा टाइम ऑनलाइन बिता रहे हैं अपने पार्टनर की जगह, तो तुम्हारी घंटा रिलेशनशिप टिकनी भी नहीं थी। बट बहन सही में आर्टिकल्स है ऑनलाइन जिसमें ये लिखा है कि भाई लविंग समवन टू मच मेक्स देम लूज इंटरेस्ट इन यू। सर एक्स्ट्रा इफ यू लव समवन कैन यू ट्रूली लव देम इनफ एवर। मतलब आदमी क्यूट है, मां चुदा तू क्यों, अरे तू क्यूट ज्यादा है थोड़ा। Fucking stupid. What kind of absolute slave to senses retard mohtarma made this normal? Agar you have this capability of running out of love like a fucking fuel tank, then are you alive even? I mean, you have to be dead for this. Like if you can't do it, or maybe you are enrolled in real world by Andrew Tate. मतलब हो सकता है दोनों में से एक रीजन तो है। पता हमारे गांव में बोलते हैं बड़े बुजुर्ग मतलब जात बिरादरी में बोलते हैं कि भाई जिसको रहना है ना उसको 100 बहाने दे दो छोड़ने के, वो तब भी नहीं जाएगा। एंड जिसको नहीं रहना ना भाई उसको 1000 बहाने दे दो रहने के, वो बहन का पहले इनकन्वीनियंस पे तुम्हें छोड़ के चला जाएगा क्योंकि उसको रहना ही नहीं था, उसको तो बस चाहिए था बहाना छोड़ने का, वो छोड़ गया। ठीक है, दैट्स द करंट स्टेट ऑफ रिलेशनशिप। एंड चलो फिर भी मान लो कि भाई 1 in a billion तुम्हें एक ऐसी बंदी मिल गई जिसकी पर्सनालिटी तुम्हें अच्छी लगती है एंड रिगार्डलेस ऑफ हु दे आर दे कैन मेक यू इमोशनली काम एंड मेक यू फील हैप्पी एंड हेल्दी। मान लो तुम्हें मिल गई 8 billion people in this world, उसमें किड्स भी हैं, आई एम नॉट talking about dating them, 8 billion genetic mutations जिसमें तब में कुछ ना कुछ यूनिक है including their personalities, and someday तुम्हें कोई मिला किस्मत से जिसके लिए you are willing to adapt completely, you are willing to remove absolute racist remarks from your personality entirely, or maybe you are even willing to add them। मतलब मेरे को नहीं पता तुम किस टाइप के रिलेशनशिप में और किसको डेट कर रहे हो, आई एम नॉट जजिंग, बट यू आर विलिंग टू चेंज फॉर बेटर और वर्स। मेरे को नहीं पता। तो बहन तुम ये सोचो कि ये सब चीजें एक दिन में होती है, नहीं, यू सफर अ लॉट, यू फाइट अ लॉट, you get over it, you fix things and now you have a brand new personality जो कि socially awkward नहीं है। You're not fighting anyone, you're not saying stupid shit in front of people, your partner is very comfortable with you and she can introduce you to her friends or family as well now, she is very confident in you। मतलब तुम्हारी दूसरी personality maybe अभी भी सर के अंदर है for your friends, but now you have improved, you have 2 personalities, one is very good or even worse Kanye West, but out of nowhere even then a third person pops up। ना कभी तुमसे ढंग से मिला, ना उसने कभी तुम्हें ढंग से जाना, ना उसने कभी जानने का ट्राई किया और ना वो जानने का ट्राई अब भी कर रहा है। एंड वो बंदा और बंदी डिलीवर करता है एक वर्डिक्ट ऑन टू यू कि भाई आई डोंट लाइक दिस गर्ल और डूड, ब्रेक अप विद हिम और हर, आई विल फाइंड समवन बेटर। मुझे पता मैं कहां से हूं। Who the fuck are you? You think it's मेरी public reputation, मेरा public tomfoolery वाला nature and everything else that I allow people to see about me, मैंने allow किया भाई, that's why it's public and easy to find। You think that's my true nature? And you're delivering a verdict on the basis of that क्योंकि तूने probably 3 मिनट में ढूंढ लिया ऑनलाइन, या तो Sherlock Holmes। And I'm sorry, that person can belong to any group, friends, बेस्ट फ्रेंड्स, जेलस बेस्ट फ्रेंड्स, मेल और फीमेल, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, आई डोंट नो, बट उनसे कजन्स एज वेल, बट उनसे लड़ने का काम मेरा नहीं है भाई, तुम्हारा है। यू आर सपोज्ड टू कन्विंस देम, इट्स योर जॉब। I dated you, not them. You know a lot about me. They don't know shit. They're delivering a verdict on the basis of अरे या आज बात हुई थी या तो चूत। No, you know me better. Explain this shit to them. I have practically been the most weak and vulnerable. मैंने 5 ट्राइज में बोला है by the way, यहाँ पे कट था। And even after all that, you break up just because रमेश from सेक्टर 62 जो कि 120 किलोमीटर दूर रहता है मेरे से, और वो मेरे जीवन में टोटल 24 घंटे ही मेरे साथ नहीं रहा। टोटल की बात कर रहा हूँ by the way, मैं combined visits। उसने बोला कि ये बंदा झाड़ू है, by the way उसको कुछ नहीं पता मेरे बारे में, and you should break up with me and you are also breaking up with me, क्योंकि भाई उसका verdict हमारे इमोशनल अटैचमेंट से ज्यादा मैटर करता है। यार ये दांत पे बहन क्या लेयर सी जम जाती है मेरे रात को। रमेश भाई ने अपने बिजी दिन में से टोटल 15 मिनट निकाली है क्योंकि ही इज अ बेस्ट फ्रेंड टू यू। वो कितनी मेहनत कर रहा है तुम्हारे फ्यूचर के लिए भाई। ही कंडक्टेड रिसर्च अबाउट मी फॉर टोटल ऑफ 15 मिनट्स एंड जो इन्फॉर्मेशन निकाली है वो उसने मेरी पब्लिक प्रोफाइल से निकाली है जो कि मैंने पब्लिक कर रखी है। सोच रहे हो हाउ मच दैट पर्सन केयर्स अबाउट यू। एंड उसने वर्डिक्ट डिलीवर करा कि भाई या तो आई विल फाइंड समवन बेटर, एंड तुमने सुन भी लिया। क्या कहूं मैं, बाय।